Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter which name is Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. In this particular chapter we will study the inner thought of the people who are living in village area and the people who spends time who spend time who spend time in the cities. In this chapter, there is a person whose name is Ranga and who goes to city for pursuing his studies, and when he comes back, people gathers around him to know whether he has changed or not, and particularly they want to know about his views on marriage, what he thinks. Generally, what happens, the city life and the life in village, they are totally different, and generally the people who are living in village, they have so many doubts, and they have so many superstitions, they have so many customs and traditions, and they don't want to challenge all of them. So generally they think the person who is living in the city or the person who are living in the city, they have the different ideas, they have the different attitude, they have the different belief about the customs of the prevailing society. So in this context we are going to get the inner thought of the people who are living in the village through this chapter, Ranga's Marriage. So let's start it. When you see this little, some of you may ask when you see this title, some of you may ask Ranga's Marriage? Why not Ranganathan Vivah or Ranganathan Vijaya? Well, yes, I know I could have used some mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyana. Writer says कि उसने जो ये टाइटल रखा हुआ है, हम में से बहुत लोग ये चीज़ पूछ सकते हैं कि रंगास मैरिज टाइटल ही हमने क्यों रखा, हमने इसको रंगनाथन विवाह या रंगनाथन विजया इनमें से टाइटल क्यों नहीं चुना। तो राइटर कहता है कि खैर हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे माउथ फिलिंग जो फ्रेजेस हैं उनको मैं रख सकता था। माउथ फिलिंग मतलब जो कि एकदम मुंह से निकलते हैं, यानी कि लंबे टाइटल जो प्रिवेलिंग सोसाइटी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे विजया, कल्याणा, मैरिज, विवाह, इस तरह के, और मैं उनको इस्तेमाल कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजया, गिरिजा कल्याणा, इस तरह के टाइटल इस्तेमाल कर सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन वो कहता है कि ये जो चीज़ है वो जगन्नाथ की विजय और गिरिजा की वेडिंग के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ये हमारे जो अपना जो जगन्नाथ है उसकी मैरिज के बारे में, और इस तरह से इसका जो टाइटल है बिल्कुल भी फैंसी नहीं है। फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेटिव। कोई ऐसा इमेजिनेटिव टाइटल नहीं है कि जो यहाँ पर रखा गया है ये हमारा जाना पहचाना रंगा है, जिसकी मैरिज जो सेरेमनी है वो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। होसाहल्ली इज़ आवर विलेज। हमारे गांव का नाम क्या है? होसाहल्ली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो? व्हाट अ पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। आपने हमारे गांव का नाम सुना होगा? नहीं सुना? अरे बड़ी दुख की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ज्योग्राफी बुक में उसका नाम मेंशन ही नहीं है। दो हिज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it। तो राइटर कहता है कि वो जो साहब लोग हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, अंग्रेज़ी के अंदर लिखते हैं, शायद उन्होंने ऐसे किसी जगह के बारे में नहीं सुना, होसाहल्ली नाम की जगह जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। Why the writer is saying this particular thing here in this passage? Because
Most of the people who are writing about geography, especially in English language, they belong to abroad, especially England. तो ये जो जोग्राफ़र हैं, जोग्राफ़ी लिखने वाले, जो जोग्राफ़ी के बारे में लिखने वाले जो लोग हैं, ये अधिकतर वो लोग हैं जो विदेशी देशों से दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं, और ख़ास करके इंग्लैंड से। तो ऐसी किसी जगह के बारे में उनको नहीं पता था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कोई जो जगह थी उसको नक्शे पर मेंशन नहीं किया। Our own people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. When she walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. राइटर कहता है कि एक्चुअल में क्या है कि ये उनकी गलती नहीं है, हमारे जो खुद के लोग हैं जो ज्योग्राफी के बारे में लिखते हैं वो भी इसके बारे में भूल गए। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भेड़ चाल जैसा है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भेड़ ब्लाइंडली उसको फॉलो करती है और वो भी गड्ढे में गिर जाती है। दोनों ने, यानी कि हमारे जो जोग्राफर्स थे और जो इंग्लैंड के जो जोग्राफर्स थे, उन्होंने इसको रेफ़र ही नहीं किया। अब वो कहता है कि बेचारे जो कार्टोग्राफर हैं, जब ना हमारे लोगों ने ना उन्होंने इसको मेंशन ही नहीं किया, तो बेचारे जो कार्टोग्राफर हैं वो इसको नक्शे पर कैसे मेंशन करते? क्या आप कर सकते हैं? तो वो कहता है कि इस तरीके से हमारे जो विलेज है उसकी परछाई भी नक्शे पर मेंशन नहीं हुई। कार्टोग्राफर का मतलब होता है दिस पर्टिकुलर वर्ड कार्टोग्राफर, इट मीन्स द पर्सन हु ड्रॉज द मैप। जो व्यक्ति मैप बनाता है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। और नक्शे बनाने की जो आर्ट होती है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज कार्टोग्राफी। Cartography is a particular practice where maps are made, and the person who made them is known as cartographist or cartographer. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Kariga Dabu is to a festive meal, then Hosa Ali is to Mysore state what the village is to the Kariga Dabu. What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I'm not the only one who speaks glowingly of Hosa Ali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, "No, Anaya, I have left that to you. Running around like a flea-pester dog is not for me. I've seen a few places in my time, though as a matter of fact, he has seen many." राइटर कहता है कि मैं दूसरी बात कर रहा था, लेकिन बातों बातों में किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो वो कहता है कि अगर मान लीजिए हमारा जो मैसूर स्टेट है वो अगर भारतवर्ष होता, तो यहाँ जो फेस्टिवल मनाए जाते तो उस फेस्टिवल मील जो होती उसमें एक स्वीट इस्तेमाल होती जिसका नाम होता करिगा डबू। और फिर वो कहता है कि उसके बाद जो होसा हल्ली है वो मैसूर स्टेट के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे करिगा डब्बू किसी फेस्टिवल के लिए होता है। यानी कि जिस तरीके से उस फेस्टिवल के लिए ये पर्टिकुलर स्वीट है, उसी तरीके से मैसूर स्वीट के लिए वो सहली है। वो कहता है कि जो मैंने कहा है दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, आप मेरा यकीन करिए, मैं आपकी क्वेश्चनिंग को ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है, मैं उस पर डटा रहूँगा। और मैं केवल एकमात्र पर्सन नहीं हूँ जो होसा अली के बारे में इतना ग्लोविंगली, इतना चार्मिंग तरीके से उसके बारे में बात कर रहा है। हमारे गांव में
एक डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडा बट, वो मेरी बात से अग्री होता है। वो बहुत सारे प्लेसेस पर जा कर के आया है, इंग्लैंड नहीं गया। अगर कोई इससे पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड जा कर के आया है, वो सिंपली कहता है कि नो अनैया। अनैया इज़ अ वर्ड जिसका मतलब है रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, यानी कि अपने बड़े के लिए। कन्नड़ में एक वर्ड अनैया होता है, अनैया होता है एक वर्ड जिसका मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि नहीं जी या नहीं भैया, इस तरह का एक वर्ड इस्तेमाल होता है कर्नाटक के अंदर। तो वो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से मना कर देता है। अब वो कहता है कि मैं अब ये बात आप पर छोड़ देता हूँ कि आप इस चीज़ को माने या फिर ना माने। राइटर आगे कहता है कि फ्ली पेस्टर्ड डॉग, यानी कि एक ऐसा कुत्ता जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं और वो यहाँ वहाँ दौड़ता होता है, वो मेरे लिए सच नहीं है। मैंने कई सारे प्लेसेस देखे अपने टाइम में, हालांकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, लेकिन जहाँ तक तथ्यों की बात है वो काफ़ी सारे जो प्लेसेस हैं उनको देखकर आ चुका है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड देन आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, डोंट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट। हमारे गांव में कई सारे आम के पेड़ हैं, आप आइए, मैं आपको वहाँ विज़िट कराऊंगा और मैं आपको एक कच्चा आम भी खाने के लिए दूंगा। सॉरी, कच्चा आम, मैं आपको उनमें से कच्चा आम दूंगा, खाना नहीं है इसको, केवल एक छोटी सी बाइट लेनी है। अ शावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। I once took one such fruit home and a chutney was made of it. All of us ate it. The cough was suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. अब वो कहता है, जैसे कहता है ना खट्टा आम, जब आप कच्चा आम जब खाते हैं तो कच्चा आम खाने के बाद में एक जो खटास जो होती है, वो खटास आपके एकदम मुंह के अंदर जाकर एकदम से आपको एक अलग सा जो एक टेस्ट देती है, उसी को राइटर यहाँ मेंशन कर रहा है। और ये जो ब्रह्मरंध्र जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एक्चुअल में क्या है कि ये पैलेट की बात कर रहा है। हमारे माउथ के अंदर जो हमारा पैलेट होता है, यानी कि जो हमारा ऊपरी हिस्सा होता है माउथ में, उसको हम पैलेट कहते हैं। तो जैसे ही हमारी जीभ को और हमारे पैलेट को वो जो शावरनेस है वो जब टच करती है, तो एक जो सेंसेशन है वो आप समझते होंगे कि किस तरह का वो सेंसेशन होता है। तो राइटर उसी की बात कर रहा है। राइटर कहता है कि हम सब ने उसको खाया, उससे बनी हुई जो चटनी थी वो भी हमने खाई, और ऐसा जो फ्रूट है वो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और वो कहता है कि जब कभी हमें खांसी होती है तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइटर बताता है कि मैं मेडिसिन की दुकान पर गया था डॉक्टर से मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इस पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में बताया और इसकी क्वालिटी के बारे में तब मैं जान पाया। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up, but enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? राइटर कहता है कि जिस तरीके से आम स्पेशल है, उसी तरीके से हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है हमारे गांव के, वो स्पेशल है। हमारे पास एक क्रीपर का एक पेड़ है जो एवर सो फाइन, इट्स अ फ्रेज विच मीन्स हमेशा एक बेहतरीन, जो गांव के अंदर तालाब होता है, वहाँ तालाब के पास एक क्रीपर का पेड़ है जो उगा हुआ है। तो राइटर कहता है कि उसके जो पत्ते हैं, फीस्ट टू बीहोल्ड, बीहोल्ड माने टू सी, फीस्ट यानी कि जैसे आँखों का अपना एक यू कैन से एक व्हाट टू से, आँखों का अपना एक
आप कह सकते हैं कि अच्छा लगने वाली चीज़, यानी कि आंखें जो होती हैं जब वो किसी सुंदर चीज़ को देखती हैं तो देखने के बाद में जो हमारी आंखें हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी कि जो हमारी सेंसेस हैं, जैसे 5 सेंसेस जो हमें दी गई हैं, जब कोई चीज़ हम उन 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं तो हमें एक तरह का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइटर उसी की बात यहाँ कर रहा है। जैसे आप कोई म्यूज़िक अगर सुनते हैं एंड दैट म्यूज़िक इज़ वेरी मेलोडियस, सो you feel a kind of satisfaction inside you. In the same way, when you behold, when you see something that is very beautiful, something is very attractive, so it soothes you, it attracts you, it gives you a inner satisfaction. एक जो वो sensation होता है किसी अच्छी चीज़ को देखने के बाद, तो वहाँ से वो कहता है कि आँखों के लिए एक तरह से फीस्ट की तरह है। वैसे जनरल मीनिंग जो होता है फीस्ट का, दैट इज़ पार्टी, जिसको आप दावत कहते हैं, तो आँखों के लिए एक तरह से वो दावत ही है। तो वो कहता है कि आप उसके 2 लीव्स को तोड़िए क्रीपर से, और जब आप पौंड पर नहाने के लिए जाएं तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप आफ्टरनून मील सर्व करेंगे तो आपके पास में कोई पत्ता नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स में वो जो लोग होते हैं, दे डू नॉट यूज़ जनरली यूटेंसिल्स, दे यूज़ पाम लीव्स और बनाना लीव्स और दिस क्रीपर लीव्स टू सर्व द मील। कहता है कि आप कहेंगे मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ। रैम्बलिंग का मतलब होता है, रैम्बलिंग जो वर्ड है, रैम्बलिंग का मतलब होता है टू यहाँ वहाँ की बातें करना, और टू ट्विस्ट द पॉइंट, यानी कि जब आप सीधे सीधे पॉइंट पर नहीं आते, घुमा फिरा के आप यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं, तो उसको हम रैम्बलिंग कहते हैं। तो राइटर कहता है कि आप कहेंगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था कि जब हमारे सब्जेक्ट की बात, जब हमारे विलेज की बात आती है तो ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब निकल के आती है। लेकिन खैर काफ़ी हो गया। अगर आप में से कोई यहाँ पर आना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ लाइन, आप मुझे एक लेटर लिखिए और उसके बाद क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहल्ली कहाँ है और यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से हैं। किसी भी जगह को जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वहाँ जा कर के विज़िट करिए। डोंट यू अग्री? आप सहमत नहीं हुए? यानी कि राइटर पूछता है अपने रीडर, जो उसके रीडर्स हैं, अपने रीडर से राइटर पूछता है कि क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हुए। वो कहता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी जगह को जानने का, आप वहाँ जाइए और जाने के बाद वहाँ पर आप घूम कर आइए, तब आपको हकीकत में चीज़ों का पता लगता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर रंगाज मैरिज, एंड व्हाट एल्स दैट is special about the Hosahalli, and what is this Ranga's marriage, we will come to know in our next chapter. Till then, thank you very much, and do not forget to subscribe the channel to get the latest videos of chapter.